So hi, basically today we are going to discuss LeetCode Weekly Contest 494. It was conducted on 22nd March 2026. My name is Harsh Tiwari and let's begin with the first question that was there. Now this was a pretty straightforward question. In this, as you can see that we are given a nums1 and we have to construct a nums2 in which for each index I we can do one of the following two operations, which is firstly is nums2i equal to nums1i. This is the first operation given, and second is the nums2i equal to nums1i minus nums1j. First, I'll take you through the example that was given in the question only. Now, the first example that was given was 2, 3, as I can see. Yeah. Now, this is nums1, okay. So either for constructing nums2, and the nums2, yes, all elements have to be either odd or all elements have to be either even. So it is only all odd or all even thing. Now for constructing nums2, what I'll do? This is 0, this is 1. So at nums, for applying the first rule, nums to 0. Sorry, applying the second rule, this one, nums to 0 equal to nums1 0 minus nums1 at 1. I'm just doing as it is given in the example. The second rule has been applied over here. So this comes as 2 minus 3, which is minus 1. Now this is an odd number. So we're trying to make all odd. So this has to be an odd number. So to obviously to bring this as an odd number, I'll just take up the first rule, which is nums2 at 1 and make it at nums1 at 1, and nums1 at 1 is 3. This is an odd number, so minus 1, 3 is an odd. Both elements are odd. So in this, the answer will be true. Now, you would be knowing the parity concept. There are some parity rules which you would obviously know, like 7 minus 2 gives 5. Now this is an odd minus even operation. Now see, odd minus even operation would always give you an odd number. You can try it out. Odd minus even would be an odd. Even minus odd. Let's say 6 minus 3 would be 3. So this would be always odd. No exception in this. Odd minus odd would be always even. 7 minus 3, 4. And even minus even would be even, always. Now these are the 4 parity rules which you should be aware of. From this we derive a conclusion. Basically, that conclusion you should know that you can flip the parity of any number by subtracting it. So subtraction helps you in flipping the parity, and it depends on what you subtract. So in our problem, there can be two cases basically. First case is that we make all even. Second case is that we make all odd. In the all even case, if the element is even, then no problem. But if the element is odd, now if the element is odd, to make it even, because we are targeting all even, to make it even, we have this thing, odd minus odd equal to even in our parity rule. So we would be needing one more odd number in the array to make it even. Getting it right, because we have to subtract it with an odd number to get an even. So we would be needing one more odd to make it even, so that all numbers become even, because odd minus odd would give you even. So if the count of odd is here greater than 2, then we would be able to make all even. Now this condition is there. We would be needing more than 2 odds or equal to 2 odds to make all the elements even. Now in the all odd case, if it is on an odd, then there is no problem. But if it's an even number, we need this case, this first one, odd minus even equal to odd. Now if it's an even number, we have to do this operation on it, odd minus even, to make it odd, because we are targeting all odd in this case. Now, so this gives me that at least one odd should exist. Then we can just make all the elements as odd. If one now now comes the second case, in which we have to make all elements odd, in which we are taking the case as all odd. So if it's an odd number, then it is okay, fine. But if it's an even number, we will be needing this first parity rule, which is odd minus even, to make it odd. Or like in reverse way, you can just say that even minus odd will give us odd. It will be negative, but it will be odd. So we can say that if at least this odd exists, then we can fix all the evens to make them odd. So here we would be just needing one odd. More than one would obviously do, but if one odd is there, then we can fix all those evens by just, if that odd is 3 and we have even the 6, 4, we would obviously just use this operation, which is basically the second operation. As you can see, this would give us 3, this would give us 1. These are all odd numbers. So this basically simplifies to, if in that array odd is greater than 1, I would be returning a true. Why? Because I would be able to make all those odd numbers, as you can see over here I did. And else, if it is all even, then also I would be returning a true. Because if odd is greater than or equal to 1, then we are returning a true. And
If odd is greater than equal to 2, then we can make it all even. So then also it would be true. In both cases, we satisfy it. Now only one case is left which we have not taken care of, and that is n equal to 1. What would happen? This is basically an easy case because we have to don't do anything in this. It will be true anyways every time. So from all this, I got to conclusion that it is always true. You can always do these two operations and get a nums2, which will be always odd or which have elements always odd or always even. So yes, this is a if we have to in the code we have to just write return true and it will satisfy all test cases. So let's jump into the code and then I'll code it and then we'll move on to the second question. So this is the first question and just let's code it up. There's nothing to code basically. After this, as explained on the iPad, that it's just true in all cases. Let's run it up. Let's submit it. Yep. So now we'll be moving on to the second question. Now let's move on to the second question. तो इसमें भी वही सेम दो कंडीशन हैं जो कि पहले क्वेश्चंस में थी. तो पहली कंडीशन तो बिल्कुल सेम है कि nums2 i इक्वल टू nums1 i. दूसरी कंडीशन में सेम है बट वो एक कंडीशन है उसमें विच इज़ nums2 i इक्वल टू nums1 i. ये तो सेम ही है, ये भी सेम है, ये तो ऑब्वियस सी बात है. इसमें इन्होंने एक कंडीशन ऐड की है विच इज़ nums1 i माइनस nums1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ना इस इक्वेशन का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. ये एक नई कंडीशन ऐड की है जो इसको अलग बनाता है ऊपर वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, वरना ये सेम ही है एकदम. तो इसमें मैंने जो ऊपर पैरिटी रूल्स बताए थे वो तो ऑब्वियसली पता ही होता है. मैं एक बार वापस लिख देता हूँ कि ऑड माइनस ऑड, ये क्योंकि भी मुझे इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है. ऑड माइनस ऑड ऑड होता है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, इवन माइनस इवन इवन होता है, ऑड माइनस इवन ऑड होता है, एंड इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड होता है. ये कैसे भी मतलब ऐसे कर करके भी डिराइव कर तुरंत लिख सकते हैं आंसर 7 - 3 4 ऐसे कर करके. तो इससे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मतलब मैं बस रास्ते देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे एक इवन नंबर से एक ऑड नंबर पे जा सकता हूँ. एक इवन नंबर से ऑड नंबर पे जाने पे मेरे पास एक तो ये तरीका है, और एक ऑड से इवन जाने पे एक तो ये तरीके हैं. ठीक है, मुझे बस वही मैप करना था कि मुझे कौन से तरीके हैं मेरे पास. जैसे मेरे पास ये जो एरो होगा, मैं अब मुझे जो nums2 क्रिएट करना है उसमें मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो ऑल ऑड हो या तो वो ऑल इवन हो. ठीक है, तो ऑल ऑड में मेरे पास अगर कोई ऑड नंबर आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. सही ऑड ऑड नंबर है, मैं भी चाहता हूँ कि सारे ऑड नंबर हो. लेकिन अगर कोई इवन नंबर आता है ना, इवन नंबर में मैं क्या चाहूँगा कि मैं उसको ऑड बनाऊँ. तो मेरे पास इवन से ऑड बनाने का तरीका क्या है? मेरे पास इवन से ऑड बनाने का तरीका ये वाला है जो मैप होता है, इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड. ठीक है, अब इसमें मुझे मेरे पास इवन नंबर था, उसमें मैंने इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड करके उसको ऑड बनाना चाहा. तो इसमें मुझे कितने ऑड एलिमेंट लगे? एक ऑड एलिमेंट लगेगा. तो इससे मैं क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि मैं कोई वेरिएबल रखूँगा विच उसको मैं कुछ नाम देता हूँ लाइक काउंट ऑफ ऑड करके. ठीक है, तो काउंट ऑफ ऑड या तो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो. इक्वल भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई जैसे इवन एलिमेंट आता है, जैसे मान लो 8 आता है और कोई मेरे पास एक भी ऑड एलिमेंट है, तो मैं उससे माइनस करके जो सेकंड रूल है मेरे पास वो लगा के मैं उससे ऑड बनाता रहूँगा और मेरा nums2 क्रिएट हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इससे मैंने एक ये कंक्लूजन ड्रॉ करा कि मुझे यहाँ इस वाले केस में जब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ऑड बना दूँ तो मुझे काउंट ऑफ ऑड 1 से बड़ी चाहिए होगी, तभी मैं हर इवन को ऑड में कन्वर्ट करा पाऊँगा. ठीक है ना, अब इस वाले केस में देखते हैं. अगर ऑल इवन मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा nums2 को सारी इवन बना दूँ, तो कोई इवन नंबर आता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है. अब कोई ऑड नंबर आता है यहाँ पे ना, अब मेरे पास इवन से ऑड जाने का तरीका क्या है? नहीं सॉरी, ऑड से इवन जाने का तरीके कितने हैं? एक तो ऑड माइनस ऑड करके मैं इवन पे आ सकता हूँ, और तो मुझे कुछ तरीका नहीं दिख रहा कि मैं इवन तक पहुँचूँ. ऑड माइनस ऑड करके मैं इवन तक पहुँच सकता हूँ. जैसे मेरे पास 2 ऑड आ गए 7 - 3, तो मैंने 7 और 3 आ गए तो मैंने उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया और ये 4 आ जाता है. तो ये मैंने एक इवन नंबर को अचीव कर लिया. तो अब इससे मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा कि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि मुझे काउंट ऑफ ऑड 2 चाहिए होगी यार. अब 2 चाहिए, 2 से बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक है ना, अगर 2 से बड़ी भी होगी तब भी तो मैं सब्ट्रैक्ट करके उसको इवन तो बना ही दूंगा ना. तो दैट इज़ द रीज़न कि ऑल इवन वाले केस में जब मुझे सारे ही नंबर इवन बनाने हैं तब मुझे काउंट ऑफ ऑड जो है वो 2 से बड़ा चाहिए होगा. ठीक है, तो इससे मैंने क्या आखिरी में एक कंक्लूजन ड्रॉ करा था विच इज़ कि या तो जब मैं ऑल ऑड चाह रहा हूँ, ये वाला केस चाहता हूँ जब मैं चाहता हूँ कि सारे में ऑड बना दूँ, तो यार देखो या तो मुझे इवन काउंट 0 दे दो. अगर इवन काउंट 0 तो ऑब्वियसली सारे ऑड है. ठीक है, और या दूसरी चीज़ अगर ऑड काउंट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. ठीक है, ये वाला केस है फर्स्ट वाला, तो मैं जो भी सारे इवन नंबर्स होंगे उनको ऑड में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड मैं ये फर्स्ट वाला जो केस है मेरा ये वाला केस मैं अचीव कर लूँगा. दूसरा क्या है कि ऑल इवन, ये भी एक केस है जो मैंने सेकंड वाला, इसमें या तो भाई मुझे ऑड काउंट को 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे. ठीक है, या फिर मुझे ऑड काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे दो. अगर ये 2 से ऊपर दे दी तो मैं ये वाले रूल अप्लाई करके ऑड माइनस ऑड करके मैं इवन बना दूंगा उसको, तो सारे इवन हो जाएंगे. ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक तो सब सही था. अब मैंने इसको सबमिट करा तो इसमें जब एरर आई तब मैंने आगे सोचा कि अब इसमें मैंने दिक्कत कहाँ की है. अब देखो इसमें सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. जैसे 1 4 7 है, इसमें क्या है? इसमें 2 ऑड दिख रहे हैं, एक इवन दिख रहा है. ये ऑड है, ये इवन दिख रहा है.
तो मैं ऑब्वियसली वो ऑड काउंट वगैरह तो मैं मॉड 2 करके चेक कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं कोड में दिखा दूँगा जब मैं कोड करूँगा, वो तो बेसिक है। तो इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है, ऑड 2 है, इवन 1 है। तब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ले जाऊँ ऑल ऑड वाले की तरफ, ठीक है, मेरा मन है, मैं ऑल ऑड बनाना चाहता हूँ, मैं इस 4 को भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली आराम से। कि मैं क्या करूँगा कि जैसे 7 - 4 कर दूँगा, सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दूँगा, 7 - 4 करके इसको मैं बना दूँगा 1 3 7, सारे ऑड हो गए भाई, नम्स टू ग्रेड हो गया, बढ़िया, ट्रू हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड एक और एग्जांपल मैंने उसी में देखा जो फेल हुआ था, तो 2 3, ठीक है, तो 2 3 में मेरे पास एक ही ऑड है, इसमें इवन 1 है, ठीक है। तो इसमें ऑड काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन क्या, इक्वल टू 1 हो रहा है, ये वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है, बट इसमें इवन 1 है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी ले जाऊँ इसी वाले पे, मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मैं सारे ऑड बना दूँ, तो मैंने स्टार्ट करा बनाना। अब मुझे एक इवन दिखा, ये वाला जो 2 है ये एक इवन दिखा, अब मैंने यहाँ पे देखा ही था कि मुझे अगर कोई इवन दिखेगा तो मैं इवन माइनस ऑड करके उसको ऑड बना दूंगा। तो मेरे पास ऑड क्या है, 3 है, तो अब मैं 2 - 3 करने जाऊँगा, अब ये लेस देन 1 आ जाएगा। और यही है इस प्रॉब्लम का क्रक्स कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं पहले में कर सकता था, लेकिन ये मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये तो -1 आ जाएगा और ये लेस देन 1 हो गया। अब इन्होंने अपने उसमें क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है उसमें ये कंडीशन यही दी हुई है कि मुझे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। तो ये वाले केस पे ये फेल कर गया, मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो मैंने आगे सोचा कि मैं अब इस पे इस चीज़ को फॉल्स लाऊंगा कैसे। तो अब इसमें मैंने देखा कि मुझे अगर ये जो ऑड एलिमेंट है ये अगर इस इवन एलिमेंट से छोटा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ना, तो मैं आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकता था। जैसे 4 और 1 होता तो 4 - 1 करके मैं 3 कर सकता था उसे। इसमें इवन बड़ा है और इसमें ऑड छोटा है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इवन छोटा हो गया और यहाँ पे ऑड बड़ा हो गया, तो दिक्कत हो गई, तब वो लेस देन 1 हो गया। तो सिंपल मुझे दिख रहा था कि मुझे ऑड बड़ा चाहिए, ऑड छोटा चाहिए, मुझे ये दिख ही रहा है। तो इससे मैंने क्या देखा कि मुझे जो ऑड एलिमेंट है, जो भी मेरे पास एक ऑड हर इवन से छोटा चाहिए होगा, ताकि मैं उस ऑड का यूज़ करके उसको सारा इवन में कन्वर्ट करा पाऊँ, सॉरी उसको सारा ऑड में कन्वर्ट करा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना, जैसे मैं बताता हूँ, ये है, यहाँ पे मैं 2 - 3 नहीं कर सकता, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे 4 और 1 होता तो मैं ऑब्वियसली 4 - 1 करके उसको 3 बना सकता था ना, तो ये मेरा आंसर ट्रू हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे इससे सिंपली एक बात समझ में आई कि जो मेरा एक ऑड एलिमेंट हर इवन एलिमेंट से कम होना चाहिए, ठीक है। वी एक्चुअली नीड एटलीस्ट 1 ऑड दैट इज लेस देन ईच इवन, ठीक है। जो एक कोई ऐसा ऑड होना चाहिए जो ईच इवन से कम हो उस एरे में, ताकि मैं सेकेंड रूल का यूज़ करके उसको ऑल ऑड बना दूँ, ठीक है ना, जैसे इसमें मैंने किया, ठीक है। ये वाली कंडीशन याद रखना, इसको मैं अभी कोड में जब कन्वर्ट करूँगा तब वहाँ पे भी बोल दूँगा, तो वहाँ पे भी समझ आ जाएगा। नाउ फिर से हम एक बार वो वाला केस री एग्जामिन करते हैं जो अभी ऊपर गलत हो रहा था हमसे। एक चीज़ और है कि जैसे तो मैं कह रहा था कि एक चीज़ और है, जैसे कि ये वाला एक केस था 2 3, ठीक है। तो इसमें मैं एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो स्मॉलेस्ट ऑड एलिमेंट है ना, उसका थोड़ी ना कोई स्मॉल होगा, उससे थोड़ी ना कोई स्मॉल होगा। तो इस वाले केस में ऑल इवन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ऑड काउंट मेरा जीरो, मतलब इसमें कोई ऑड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सिंगुलर ऑड होगा ना तो मैं करके कुछ नहीं कर पाऊंगा इसको ऑल इवन में कन्वर्ट करने के लिए, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास ये करने का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक ऑड है ना तो वो पॉसिबल नहीं है, ऑड काउंट जीरो ही होना चाहिए उसमें। ना अगेन हम यही वाला केस देखते हैं अभी 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें मिनिमम ऑड मेरे लिए यही है, 3 है, ठीक है। बट इवन जो है वो 2 है और 2 लेस देन 3 वी कांट कन्वर्ट, ये गलत है, ये फॉल्स है। ना ऑल इवन वाला केस ट्राई करते हैं, ये पहला वाला तो ऑल ऑड था, तो ऑल इवन वाले में मेरे पास ऑड काउंट जो है वो इक्वल टू 1 है, इसमें 3, ये जीरो के बराबर ही नहीं है। यही मैंने आपको यहाँ पे ये वाला जो समझाया था ये इसीलिए बताया था, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए था, तभी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें भी ये फॉल्स ही है, ठीक है ना, क्योंकि जब स्मॉलेस्ट ऑड मेरे पास एक ही है तो मैं कुछ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको इवन में कन्वर्ट कराने का, कुछ कैसे भी कोई भी तरीका नहीं है। जो 4 पैरिटी रूल्स है वो भी लगा के देख लेंगे तो उससे कोई भी तरीका नहीं है ना। सेम जैसे 4 और 6 है, इसमें तो दोनों ही, इसमें तो ऑड काउंट, जैसे इसमें ऑड काउंट 0 है मेरे पास, तो इसमें तो ऑल इवन है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ट्रू होगा। सेम 1 4 7, इसमें देखना, इसमें मेरे पास मिनिमम मॉड क्या है, इसमें मिनिमम मॉड 1 है मेरे पास, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ मिनिमम मॉड 1 है, इवन क्या है, इवन 4 है, मिनिमम ऑड इवन से छोटा है, हमने चेक किया मिनिमम ऑड जो है वो इवन से छोटा है इसमें,
और भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब मिनिमम मॉड 1 आया तो बस 1 से बड़े होने चाहिए इवन, ठीक है, ताकि मैं कन्वर्ट करा पाऊँ उन्हें। इसमें छोटा है, 1 लेस देन 4 है, तो ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करूँगा इसमें, ठीक है ना। तो बस यही यहाँ पे इसका यही क्रक्स था इस प्रॉब्लम का। 2 3 वाले कैसे आप एनालाइज कर सकते थे कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। मैं 2 - 3 नहीं कर सकता था, तो बस उससे मैंने क्या डेराइव करा, उससे मैंने ये डेराइव करा कि मुझे एक ऑड एलिमेंट चाहिए ही होगा जो हर इवन से कम हो उस एरे में, ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, वरना मेरे पास कोई तरीका नहीं रह जाएगा। एक ऑड एलिमेंट चाहिए होगा जो सारे इवन से कम हो, तो उसको मैं यूज़ कर पाऊँ ताकि मैं सारा ऑल ऑड वाला केस अचीव कर पाऊँ, ठीक है। नाउ अभी मैं इसके अब हम इसके कोड पार्ट पे चलते हैं। वहाँ पे मैं कोड बोलूँगा तो एक बार और बोलूँगा तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं 2 वेरिएबल ले लूँगा पहले, तो एक मैं ले लेता हूँ काउंट ऑफ ऑड नंबर्स पहले, ठीक है, और मैं यहीं पे एक और ले लेता हूँ काउंट ऑफ इवन, ठीक है। पहले तो मैं नम्स 1 से जाता हूँ, पहले मैं ये दोनों काउंट अपडेट कर देता हूँ, तो 3 टारगेट्स इन नम्स 1 इवन पर चेक, ठीक है। तो अगर ये इसका मॉड 2 बनने पे बना है तो लेट्स इंक्रीज द काउंट ऑफ ऑड एंड प्लस प्लस जो भी आप वो भी कर सकते हैं, एंड एल्स काउंट ऑफ इवन को इंक्रीज कर देंगे। ये काउंट आगे काम आएगा जब हम वो वाला केस देखेंगे कि सारे एलिमेंट ऑड हैं, सारे एलिमेंट इवन आ जाए, तब ये काम आएगा, तो हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देंगे उसमें, ठीक है। तो काउंट ऑफ इवन प्लस 1, ठीक है। तो इससे मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ मैं पहले एक बार चेक कर लूँगा कि अगर ऑड काउंट ही जो काउंट ऑफ ऑड है वही अगर 0 है तो भाई ऑब्वियसली ट्रू है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, डायरेक्टली बोल सकता हूँ। सेम फॉर काउंट ऑफ इवन भी, अगर काउंट ऑफ इवन भी 0 है तभी मैं बोल सकता हूँ। तब एक ही केस और आता है जिसमें जो मिनिमम ऑड एलिमेंट है वो सारे इवन नंबर से कम हो, तो मैं सारे इवन नंबर से चेक करने के बजाय तो पहले बात तो मैं मिनिमम ऑड निकाल लेता हूँ इसमें से। तो मिन ऑफ ऑड कैसे, वही मैं ले लूँगा और उसको कंपेयर कर लूँगा, मिन ऑफ ऑड कॉमा आई से, मतलब हर एलिमेंट से, और ऊपर उसको मैं आईएनटी मैक्स से इनिशियलाइज कर दूँगा दोनों को, मिन ऑफ ऑड को आईएनटी मैक्स, ठीक है। तो अगर जो मिनिमम ऑड एलिमेंट है वो अगर मिनिमम इवन एलिमेंट से कम होगा तो ऑब्वियसली वो सारी इवन एलिमेंट से कम होगा, एंड तभी उसको आराम से ऑल ऑड बना दूँगा पूरा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मिनिमम ऑफ इवन भी निकाल लेता हूँ ताकि मुझे हर इवन के साथ चेक ना करना पड़े। अगर वो सही छोटा है मिनिमम वाले से तो ऑब्वियसली वो सबसे छोटा हुआ, फालतू में मुझे हर इवन एलिमेंट से चेक नहीं करना पड़ेगा, एक ही से चेक करके बताएगा, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ इवन आ गया और मिनिमम ऑफ ऑड आ गया अपने पास। तो अभी वही मैं चेक करूँगा डायरेक्टली कि अगर ये जो ऑड एलिमेंट है मिन ऑफ ऑड और ये मिन ऑफ इवन से छोटा है तो आराम से दिस कैन बी कन्वर्टेड टू ऑल ऑड। इससे ना तो मेरा ये वाला रूल वायलेट होगा जो उन्होंने दिया है, क्योंकि अब मैं सब्ट्रैक्ट करके उसको ऑड बना लूँगा टोटल, थर्ड पैरिटी रूल का यूज़ करके ऑड माइनस इवन इक्वल टू ऑड करके, और ना तो उसमें ये वाला रूल वायलेट होगा क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि ऑड एलिमेंट सारी इवन से छोटा ही है। जो अपना केस था ना 2 3 में उसमें यही दिक्कत थी कि 3 बड़ा था 2 से, तभी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो लेस देन बना था। तो अगर ये ऐसा है तो इसमें भी ट्रू रिटर्न करना सिंपल। अब अगर ऐसा मतलब दोनों ही केस मेरे से ये इनमें से कुछ भी नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ये दोनों तो बहुत ही सिंपल केस हैं, काउंट ऑफ ऑड और ये वाले, ठीक है। द कोड इज डन, अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल टेस्ट केस तो होगा बस, यस इट इज डन। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज गिवन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है, एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ है, एंड हमसे बोला है कि हमें इस नम्स एरे में से मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं ताकि जो बचे हुए एलिमेंट्स हों उनका बिट वाइज रिजॉल्व करने से टारगेट की वैल्यू आनी चाहिए। नाउ जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल से मैं बताऊँ, दे रखा है इसमें 1 2 3, ठीक है। तो इंडेक्स वाइज 0 बेस्ड है, तो ऑब्वियसली नम्स जो एरे है वो हमें ये दे रखा है। नाउ मैं एग्जांपल में ही देख सकता हूँ, अभी तो जो मैं लॉजिक देखना चाह रहा हूँ कि इसमें करना क्या है मुझे। तो उसने बोला कि हम 2 को हटा सकते हैं, एंड देन वो कह रहे कि हमारे इसमें जो टारगेट है वो हमें दे रखा है 2। इसने बोला कि हम 2 को रिमूव कर दें तो जो 3 और 1 का बिट वाइज और आएगा वो 2 हो। तो बिट वाइज और पता होगा कि क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ। सेम एलिमेंट्स पे 0 देता है एंड डिफरेंट एलिमेंट्स पे 1 देता है वो वैल्यू। तो 1 1 इस पे 0, सेम एलिमेंट्स पे देखना जो है वो उसने 0 दिया और डिफरेंट एलिमेंट्स पे 1, ये होती है जॉर की प्रॉपर्टी। तो मैं इसमें से अगर 2 को रिमूव करके 1 और 3 का जॉर करूँ तो उनको वही बाइनरी में लिखना पड़ेगा, लाइक ये तो पता ही होता है 1 जॉर 3, मैं करके देखूँगा 1 जॉर 3 0 0 1 और 3 0 1 1, तो 1 1 0 0 1 1 1 तो 0 आ जाएगा, सॉरी 0 1 0, दिस कम्स आउट एज 2, दिस सही है। अगर मैं इस 2 को रिमूव कर दूँ तो 1 और 3 का जो बिट वाइज और है वो टारगेट 2 के इक्वल आएगा। वही अगर मैं देखता कि इनका टोटल पे करता, ठीक है, तो 1 और 3 का 2 आ गया, फिर 2 और 2 भी कर देता मैं वापस से, जो बीच वाला एलिमेंट दिया तो 0 आ जाता, क्योंकि इसलिए सेम एलिमेंट पे 0 देता है और डिफरेंट 1 देता है, तो 0 आता है जो कि टारगेट इक्वल नहीं है। तो हमने 2 को हटाया और फिर हमने 3 और 1 को एज इन 3 और 1 से आंसर आ गया हमारा। तो ब्रूट फोर्स तो इसको पढ़ते ही मुझे एक चीज़ लगा कि मैं क्यों ना सारी सबसेट्स ट्राई कर लूँ। मैं नम्स के सारे सबसेट्स ट्राई कर लूँगा, लाइक 1 1 2 2 3, मेरे मैं सबका जॉर निकालता रहूँगा, जिससे भी मेरा बिट वाइज जॉर निकालता रहूँगा, जिससे भी मेरा वो टारगेट के इक्वल आता है वही मेरा आंसर होगा।
तो ये जब आप करोगे ना तो पता ही होगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 टू द पावर n। अब ये कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे किसी रीजन से लगाए हैं, तो जैसे ये 1 लेस देन इक्वल, क्योंकि जो इसमें नम्स की लेंथ है ना वो 40 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 40। अब ये पता नहीं क्या ट्रिलियंस में चला जाता है नंबर, तो ये हमेशा ही टेल देगा। ब्रूट फोर्स सही है कि मैं क्या कर सकता था कि सारे सबसेट्स ट्राई कर लूँ एक एक करके, और जो भी टारगेट के इक्वल आ रहा है मैं उसको आंसर बता देता हूँ, बट ये टेल देगा क्योंकि ये बहुत ही 2 टू द पावर 40 चली जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स व्हाई तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो दिमाग में आया दैट इज कि 2 टू द पावर 40 से दिक्कत है ना, तो क्यों ना मैं इसी को स्प्लिट कर लूँ। मैंने ऐसे और भी क्वेश्चन किए हुए थे, तो जैसे मैं 2 टू द पावर 20 और 2 टू द पावर 20, तो इससे जो मुझे हिंट मिल रहा था कि मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस एरे को हाफ पे। तो एक टाइप से मुझे इसको एक तो लेफ्ट हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा जो कि मान लो 20 है, मतलब अगर मैं 2 टू द पावर 40 वाला केस लूँ तो 2 टू द पावर 20 अप्रॉक्सिमेटली, और एक तो इसको मुझे राइट हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा जो कि अप्रॉक्सिमेटली 2 टू द पावर 20 ये भी होगा। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं लेफ्ट हाफ को प्रोसेस अलग से करूँगा और राइट हाफ को प्रोसेस अलग से करूँगा, वो मैं भी आगे बताऊँगा। इन दोनों को प्रोसेस करके इन दोनों में से टोटल एक्सॉर देख लूँगा कि वो कैसे टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और फिर उससे आंसर दूँगा, तो उससे मेरा टेल ही नहीं आएगा। ठीक है, ये होती है ऑप्टिमाइज अप्रोच, रूट से ऑप्टिमाइज करना। तो लेफ्ट हाफ के लिए लेट्स सी, मैं पहले तो उसी जो एग्जांपल है ना मैं उसी से बताता हूँ। जैसे ये 1 2 3 ये एग्जांपल लेके ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं करने वाला हूँ, और टारगेट दे रखा है मैं इसमें 2, तो इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट पे 1 लेता हूँ और राइट पे 2 और 3। ठीक है, वो आगे हम डायरेक्ट कर लेंगे, वो n/2 करके मैं लेफ्ट लाऊंगा और उससे आगे वाले को राइट में दे दूँगा, इससे जो आगे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अ, ये 0 1 2 है ना, तो ये 3 है ना इसलिए, तो 3/2 करके जो भी 1.5 और जैसे भी करके ये 1 तक आएगा, तो मैं 0 अलग लेफ्ट में रख लूँगा, 0 बेस एलिमेंट लेफ्ट 1, और राइट में मेरे आ जाएंगे एलिमेंट 2 3। डिवाइड करना तो बहुत आसान है, बाद में कर देंगे वो, तो देख लेंगे फॉर्मूला। लेफ्ट 1 राइट और 2 में 2 और 3 आ गया। अब भाई अगर मैं रूट में क्या करता पूरे को लेता, फिर पूरे को चेक करता, फिर एक को लेता, तो ये मैं नहीं कर रहा, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अब लेफ्ट सबसेट्स देखते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट सबसेट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, एक टाइप से टेबल बना देते हैं। तो सबसेट सबसे पहला तो एक तो एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो ये उसका एक्सॉर 0 होता है, इसका साइज भी 0 ही है। ठीक है, एक और सबसेट है इसमें मेरे पास जो कि 1 है, ये जो 1 दिख रहा है मेरे को, तो इसका एक्सॉर 1 ही है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, इसका साइज भी 1 है। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं एक मैप में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, वो मैं अभी आगे पता लग जाएगा कि क्यों मैप में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप में इंडेक्सिंग कैसे बनेगी, 0 से 0 1 to 1 की मैपिंग हो गई। ठीक है, अब राइट सबसेट को मैं कैलकुलेट करता हूँ ना। राइट सबसेट में भाई मैं ये टेबल बना लेता हूँ वापस से। ठीक है, सबसेट एक्सॉर साइज, और राइट में है मेरे पास 2 और 3। ठीक है, एक तो एम्प्टी आ गया। ठीक है, इसका तो 0 ही होगा। एक आ गया 2, इसका 2 होगा जोर, साइज 1 है। 3 इसका जोर 3 होगा, इसकी साइज 1 है। 2 और 3 इसका जोर अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा इसका जोर आएगा 2, तो इसका जोर आएगा 1 और इसकी साइज 2 है। ठीक है, ये मेरे राइट सबसेट का पता लग गया, और ये हमारे लेफ्ट सबसेट हैं और ये राइट सबसेट है। तो इसमें जो हम अगर ये वाला केस देखें, ये 3 वाला। ठीक है, तो इसमें जब मेरा राइट 3 है, ठीक है, तो मेरे को ज़रूरत क्या है, लेफ्ट से क्या ज़रूरत है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी लेफ्ट से क्या चाहिए कि ये इसको मैं सॉल्व करूँ तो टारगेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं नीड क्या है मेरी इस समय, तो नीड है मेरी टारगेट को मैं सॉल्व जब करूँ, तो टारगेट मेरा क्या है, टारगेट है मेरा 2 और उसको मैं सॉल्व करूँगा 3 से, तो मेरी नीड हो गई 1। अब ये मैं बताऊँगा कि कैसे ये नीड बना रही है। ठीक है, अब मैं ये 1 को देखूँगा, ये 1 मेरे पास लेफ्ट से है कि नहीं, लेफ्ट में है कि नहीं, 1 है लेफ्ट में। ठीक है, तो मैं उन दोनों के साइज़ को प्लस कर दूँगा, ये वाला साइज़ और ये वाले साइज़ से, तो इससे मेरा आंसर 1 + 1 2 आएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमें और समझनी कि ये आ कैसे रही है। ठीक है, अब बताता हूँ ये वाला ना, हमने जो लेफ्ट में जो हमने मैप बनाया ना, लेफ्ट वाला जो मैप है वो है क्या बेसिकली, दैट इज लेफ्ट मैप जोर। लेफ्ट में हमने उसका जो मैक्सिमम साइज है ना वो स्टोर किया कि मैक्सिमम साइज जिससे ये जोर आ रहा है, गिविंग दिस जोर। ठीक है, क्योंकि हमें जो हमें स्टार्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करना है। ठीक है, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम एलिमेंट अपने पास बचा के रखना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट के जो मैप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने उसमें स्टोर क्या करा है, मैंने उसमें स्टोर करा है मैक्सिमम साइज जो अभी मुझे ये जोर दे रहा है। ठीक है, मैक्सिमम साइज जो दिख रहा है लेफ्ट में, मैक्सिमम साइज जो मुझे ये जोर दे रहा है, ये मैंने स्टोर करा है मैप में लेफ्ट वाले। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम आते हैं राइट वाले में, राइट हाफ में। हम यहाँ पे पूछेंगे कि हम यहाँ पे लेफ्ट से पूछेंगे कि हमें लेफ्ट से चाहिए क्या, व्हाट शुड, ये क्वेश्चन होगा मेरा यहाँ पे कि व्हाट शुड लेफ्ट गिव सो दैट जो मेरा टोटल एक्सॉर है ना दोनों से वो इक्वल आ जाए टारगेट के। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो पता है कि लेफ्ट एक्सॉर जो है और राइट एक्सॉर इन दोनों का एक्सॉर करने से टारगेट के इक्वल आना चाहिए। नॉजॉर की प्रॉपर्टी होती है जैसे अगर ये ए एक्सॉर बी है ना, ये अगर सी का इक्वल है तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी एक्सॉर सी। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे ए एक्सॉर बी है तो इसमें तुम दोनों तरफ एक्सॉर बी ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी इक्वल टू सी एक्सॉर बी ना, ये 0 हो गया, अब सेम है इस वजह से, तो ए एक्सॉर 0 इक्वल टू सी एक्सॉर बी विच इज ए इक्वल टू सी एक्सॉर बी। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ से, तो या तो ये याद ही रखना बस, या तो ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट जोर से क्या वैल्यू चाहिए, टारगेट जोर राइट जोर। ठीक है ना, तो मुझे हर राइट सबसेट के लिए नीडेड क्या होगा, यही चीज़ जो ये मुझे बता रहे टारगेट और राइट एक्सॉर की वैल्यू मान लेता हूँ जोर वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को पूछूंगा, यही चीज़ जाके ये जो मैंने लेफ्ट मैप बनाया ना मैं इसमें देखूंगा कि यार ये है कि नहीं मेरे पास। अगर ये होगी इफ यस तो मैं बस उसको काउंट कर लूँगा कि मुझे कितना रखना है, कितने कौन से एलिमेंट्स रखने हैं। तो ये जो मेरा जो लेफ्ट मैप है ना इसमें साइज रहेगा ही, तो मैं उस नीडेड वाले एलिमेंट पे जाऊँगा और वहाँ से उस साइज को ऐड करके काउंट प्लस प्लस करता रहूँगा, फिर मैं इसका मैक्सिमम ले लूँगा। सिंपल एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दिया।
तो अगर मैं थोड़ा सा सीडो कोड पे देखें कि हम करेंगे क्या कोड में जाके, तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे लेफ्ट जो कि n/2 है, ठीक है, और राइट जो कि n - लेफ्ट हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ये हमने वो जो इनिशियल आया था उसको दो हाफ में स्प्लिट कर दिया। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट मैप बिल्ड करना होगा, ठीक है। तो भाई अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा मैं विच विल बी ऑफ INT क्योंकि मुझे साइज और जॉर वैल्यू वो स्टोर करनी पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने लेफ्ट मैप में स्टोर क्या करा था। लेफ्ट मैप में क्या स्टोर करा है, ये होगा मैक्सिमम सबसेट का जो साइज है जो मुझे ये एक्सॉर की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, गिविंग दिस एक्सॉर वैल्यू, ये वाली ये जो है गिविंग दिस एक्सॉर वैल्यू, ठीक है। नो अब वही है कि मैं इसके ऊपर लूप करूँगा जो सारे सबसेट्स हैं मेरे पास लेफ्ट पे, ठीक है। और मैं लूप करते करते जो जॉर की वैल्यू होगी ना उसको जो भी मेरे नम्स आई में वैल्यू है उसके साथ जॉर लेता रहूँगा और एक काउंट वेरिएबल ले लूँगा जो कि मैं प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। फिर वही मैं जो मैंने लेफ्ट मैप बनाया है मैं उसमें जो मेरी जॉर वैल्यू आई है मैं देखूँगा कि वो है कि नहीं, ये वही इक्वल टू लेफ्ट मैप डॉट एंड से। तो अगर ये हो गई, अगर ये नहीं है इसका मतलब तो नहीं है ना, अगर ये एंड के इक्वल हो जाता है तो लेफ्ट मैप जॉर वैल्यू मैं उसको इनिशियलाइज कर दूँगा जो भी उसका साइज है, और अगर है तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर मल्टीपल सबसेट सेम जॉर की वैल्यू दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं उस चीज़ को हैंडल करूँगी तो मुझे उसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, उस जगह पे मैक्सिमम। क्योंकि बता दो मैं क्यों, क्योंकि मुझे लिख लूँगा क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि हमें ये मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं, ठीक है, इस वजह से। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हमने क्योंकि हमें वी वांट टू कीप एज मेनी एलिमेंट्स एज पॉसिबल, ठीक है। फिर हम राइट हाफ को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं कोड तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक मैं मैक्सिमम कीप टाइप का वेरिएबल लिखूँगा जो मैं पहले तो -1 ही इसको इनिशियलाइज करूँगा और ये बेस्ट वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। यही होगा जो मैक्स एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, ठीक है। फिर सेम राइट हाफ में भी मैं वही करूँगा, जॉर वैल्यू उससे मैं जॉर लेता रहूँगा उस चीज़ का जो भी मेरा नम्स है। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम लेफ्ट प्लस आई करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली राइट हाफ तो इधर लेफ्ट प्लस आई करने से आएगा और एक और हम काउंट रखेंगे, सेम काउंट प्लस प्लस कर दूँगा मैं यहाँ पे। नो लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्रक्स है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, नीडेड क्या है। नीडेड तो वही ना टारगेट और जो भी मेरी जॉर वैल्यू आई है उसका जॉर उसके साथ। ये भी मैंने बता दिया कि लेफ्ट जॉर में क्या होगा, टारगेट राइट जॉर। ये चीज़ मुझे लेफ्ट, हाँ ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए लेफ्ट जॉर से। अब बस फिर इसके बाद मैं वो चेक जरूर करूँगा कि जो लेफ्ट मैप है उसमें ये नीडेड है भी कि नहीं जो मुझे चाहिए, ठीक है। अगर है, यस है, तो मतलब कॉम्बिनेशन तो है, मतलब वैल्यू तो है मेरा पार्ट, बस उसमें से मुझे वही n माइनस जो मैक्सिमम कीप वेरिएबल है वो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो इनको रिमूवल्स बताने हैं ना, तो ये तक मैं रख सकता हूँ और उसमें से मैं n माइनस कर दूँगा तो ये इससे मुझे रिमूवल्स पता लग जाएंगे कि इतने रिमूवल्स करने पड़ेंगे मुझे जॉर को टारगेट के इक्वल लाने के लिए, ठीक है। जो मैं लिख देता हूँ लाइक रिमूवल्स जो होंगे दैट विल बी टोटल माइनस मैक्स कीप, ठीक है। हमने लेफ्ट वाले में मैप क्यों यूज़ करा था क्योंकि हमें राइट में जब हमें लुकअप करना है ना तो हमारे पास वो बिग ऑफ 1 में हो जाएगा और कुछ यूज़ करें तो इट वुड हैव बीन टेकन मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और हमने वहाँ पे मैक्स साइज इसलिए स्टोर करा था क्योंकि हमें मैक्सिमम सबसेट का साइज चाहिए क्योंकि वी वांट टू मैक्सिमम एलिमेंट टू कीप विद आरसेल्व्स, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा वो कर दिया, ऑप्टिमाइज कर लिया क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, 2 दो में। और नाउ वी विल मूव ऑन टू द कोड पार्ट। कोड पार्ट जब मैं कोड करूँगा ना तो एक बार और सही से समझा दूँगा तो इट वुड गेट इनटू योर हेड कि मैं क्या कह रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट विद द कोड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली टैप पे डिस्कस हमने कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस। सबसे पहले तो साइज तो मैं निकाल ही लेता हूँ इसका। तो मैंने जैसे उस पर बताया था कि मैं इस ये जो नम्स आ रहे हैं ना इसको मैं स्प्लिट करूँगा दो हाफ में ताकि ये जो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का दिक्कत होने वाली है आगे ब्रूट फोर्स के जैसे वो ना हो, 2 to the power 20 में ही स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो स्प्लिट कर लेते हैं। INT लेफ्ट में मैं स्प्लिट कर लूँगा n/2 और INT राइट में आ जाएगा n माइनस लेफ्ट, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हाफ के लिए एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ जिस पे मैं स्टोर कराऊँगा, ये हो जाएगा साइज़ और ये एक्सॉर की वैल्यू जो मैं लेफ्ट मैप रखूँगा अपने, ठीक है। अब वो सबसे पहले हम जनरेट करा लेते हैं सारे सबसेट्स अपने लेफ्ट हाफ के लिए, ठीक है। तो लेट्स कीप मास्क इक्वल टू 0, मास्क लेस दैन, और अब जो सबसेट्स टोटल होते हैं वो 2 to the power n होते हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली राइट इट एज दिस। ये बिटवाइज मैनिपुलेशन है तो यू कैन स्टडी बिटवाइज मैनिपुलेशन एंड देन गेट इट कि ऐसे कैसे लिखा मैंने। एंड सेकेंडली देन मास्क प्लस नाउ INT जो मैं सबसे पहले एक जॉर वैल्यू ले लेता हूँ जिसको मैं 0 इनिशियलाइज कर दूँगा, और ठीक है एक मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि आगे काम आएगा। ये मैंने जो जॉर वैल्यू लिया ना ये उस करंट सबसेट के लिए है, ठीक है, जो अभी है, जो भी मैं आगे इस पर काम करने वाला हूँ, ठीक है। और ये काउंट उसका साइज स्टोर करेगा उसी सबसेट का करंट वाले का, ठीक है। तो लेट्स बिगिन उस सबसेट के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो ith एलिमेंट आया है ये उस सबसेट में है भी कि नहीं, मतलब जो ith एलिमेंट है वो प्रेजेंट है कि नहीं उस सबसेट में, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा कि ओके यहाँ मैंने कुछ ब्रैकेट्स किए, तो अगर प्रेजेंट है तो मैं जो जॉर वैल्यू मैंने ऊपर इनिशियलाइज करें ना वेरिएबल, मैं उससे इस नम्स का जॉर ले लूँगा सिंपल, और ये हो जाता है तो मैं उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा उस सबसेट का, ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दूँगा सिंपल। यहाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है कि मुझे जॉर की सेम वैल्यूज़ मिल सकती हैं ना, तो मुझे मैक्स स्टोर करना है उसका, मिनिमम मतलब और कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, ठीक है। मैक्स स्टोर फॉर दिस जो भी मेरे को जॉर वैल्यू आई है सेम भी आ सकती है ना, इस वजह से। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरे लेफ्ट मैप में वो जॉर वैल्यू प्रेजेंट है क्या, तभी तो ऑब्वियसली तभी तो सेम वैल्यू आई। लेफ्ट मैप डॉट, अगर ये इसका मतलब होता है लेफ्ट मैप डॉट एंड, इसका मतलब हो गया कि मैं एंड तक पहुँच गया, मिला ही नहीं मुझे, इसका मतलब तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सिंपली स्टोर करा दो जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी साइज़ की वैल्यू है लेफ्ट मैप, ये साइज़ है अपना काउंट। बट अगर ऐसा है कि मुझे मिल चुका है, मतलब वो डॉट एंड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो प्रेजेंट है, तब मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट मैप जॉर वैल्यू, मैं यहाँ पे मैक्स वैल्यू लूँगा इसकी, जो कि होगी लेफ्ट मैप जो आई है मेरे पास जॉर वैल्यू, और जो उसका साइज़ है, ठीक है, जो पहले से प्रेजेंट था और जो अभी साइज़ है, उनमें से मैंने मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। नाउ अब हमें सेम जाना होगा राइट हाफ पे, ठीक है। ये तो ऊपर वाला हमने लेफ्ट हाफ प्रोसेस कर लिया, नाउ वी कम ऑन टू द राइट हाफ। अब हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जो मैं आखिरी में जिससे हम n माइनस करके निकालेंगे, ये वो एलिमेंट्स होंगे जो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो कितने हम रख सकते हैं, कीप मैक्सिमम कर लेते हैं इस वेरिएबल का नाम, ठीक है। इसको अभी के लिए -1 रखता हूँ मैं, ठीक है। दीज आर द मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई कैन कीप, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं, इस वजह से ये मैक्स मान रहा हूँ मैं, आगे भी इसका यूज़ में मैक्स के टर्म्स में करूँगा, ठीक है। तो वही है, अब हम सारे सबसेट्स जनरेट करा लेते हैं राइट हाफ के लिए। लेट्स बिगिन। कोई भी वेरिएबल ले लो, आई मास्क ले लो, जनरली यहाँ पे मास्क ही ऐसे चलता है क्योंकि इस टेक्निक का नाम भी कुछ मास्क से ही होता है। तो मास्क लेस देन 1 लेस देन नॉट लेस देन, मास्क लेस देन, तो ये तो मैं यहाँ पे बिटवाइज मैनिपुलेशन यूज़ कर रहा हूँ, मास्क प्लस प्लस, ठीक है। वापस से मैं जॉर वैल्यू एक ले लूँगा जो कि 0, वापस से काउंट सेम है वो, ठीक है। फिर वही चेक करना है, अब सबसेट के अंदर जाना है हमें, सेम मैं चेक करूँगा कि वो आयत एलिमेंट है भी कि नहीं मेरे सबसेट में, सबसे पहले तो, ठीक है। चेक कर लिया मैंने, ना जो जॉर वैल्यू है मैं उसका जॉर ले लूँगा अगर प्रेजेंट है तो, सही है। नम्स यहाँ पे ध्यान रखना कि ये लेफ्ट प्लस आई होगा, लेफ्ट प्लस आई क्यों, क्योंकि ये राइट हाफ है ना, तो लेफ्ट में हम जो आई है वो प्लस करेंगे, क्योंकि राइट हाफ जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट, सिंपल। एंड जो काउंट वेरिएबल है तो उसकी साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। राइट हाफ भी हो गया हमारा, गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, जहाँ पे हमें अब इन दोनों का मैच करना है दोनों को, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो, वी वांट लेफ्ट जॉर की जो वैल्यू है, लेफ्ट जॉर और राइट जॉर करने से टारगेट आ जाए सिंपली, ठीक है। तो इससे मैंने क्या डिराइव करा था, लेफ्ट जॉर इक्वल टू टारगेट जॉर राइट जॉर, ठीक है। ये मैंने टापा बताया था कि कैसे डिराइव होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली ये नीडेड मान लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम ये नीड मान लेता हूँ, जो भी आइडेंटिटी नीड है, ठीक है। ये इतने की नीड है अभी, टारगेट और जो राइट की वैल्यू है जॉर वैल्यू, जो राइट जॉर है वो इसी में तो स्टोर है ना जॉर वैल्यू में, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे मैंने जॉर वैल्यू कर लिया। अब ये जो नीड है ना, ये हम अब हमें ये लुकअप करना है, ये जो हमने मैप लिया ना जिसमें हमने स्टोर करा है लेफ्ट से, वो अब हमें इस नीड को लुकअप करना है उसी मैप में, ठीक है, जो लेफ्ट वाला है। नाउ वी हैव टू चेक दैट इफ लेफ्ट हैज़ अ सबसेट विद दिस जॉर वैल्यू, जो हमने अभी जो हमारी जो नीड है, ठीक है। तो हम सिंपली चेक कर लेते हैं लेफ्ट मैप में, डॉट काउंट कर लेंगे जो हमारी नीड है वो वहाँ पे है कि नहीं, अगर है तो हम कंबाइन कर देंगे साइज़ को, जो हमने साइज़ स्टोर करा था, ठीक है, कंबाइन द साइज़। तो जो हमारा जो ये वेरिएबल है ना, ये जो हमने लिया ये इसीलिए लिया था कीप मैक्सिमम वाला, ये हो जाएगा मैक्स कीप मैक्सिमम काउंट प्लस लेफ्ट मैप में जो हमें जो वैल्यू जहाँ पे मिली है उसका साइज़, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं तो हम मैक्सिमम साइज़ लेंगे, ठीक है। सिंपल ये हो गया। अब अगर अभी तक मैक्स कीप, इसका मतलब वो इन सब में से किसी में गया ही नहीं, ठीक है ना, जो कीप मैक्सिमम है हमारा वो इन सब में गया ही नहीं कभी, इन सब लूप्स में, तो इसका मतलब अभी तक -1 ही होगा। चेक कर लेते हैं, अगर ये अभी भी -1 है इसका मतलब तो कोई मिला ही नहीं हमें, नो वैलिड सबसेट है, रिटर्न -1, नो वैलिड सबसेट आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर
उसको सबसेट्स मिले हैं, तो जो रिमूवल्स है ना, जो रिमूवल्स हमें करना है वो तो n माइनस इस कीप मैक्सिमम को माइनस करने जाएंगे ना। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न n माइनस जो हमने कीप मैक्सिमम में सारे जो एलिमेंट्स बचाए हैं उतने और जो बचे जो हमने बचाए हैं उसमें से हमने टोटल साइज को माइनस कर दिया तो उतने रिमूव करने पड़े, ठीक है। और लेट्स टेस्ट इट ऑन इनिशियल केसेस। हाँ मुझे लग रहा था मैं ये सब गलती करता हूँ। नीडेड, ठीक है, नीड। नाउ लेट्स टेस्ट नाउ, ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, नाउ लेट्स सबमिट इट। क्यों, तो हाँ तो सबमिट भी हो गया। नाउ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बढ़िया था ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। So now let's begin with the fourth question of the contest, count good sub-arrays. इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड और बेस्ड कॉन्सेप्ट का यूज़ है, तो यू कैन रिवाइज फर्स्ट अगर इफ़ यू हैव नॉट रिवाइज दिस बिटवाइज और थिंग, एक बार तो रिवाइज कर सकते हो बिटवाइज मैनिपुलेशन एंड ऑल। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या बोलते हैं प्रॉब्लम। तो हमें काउंट करना है कि कितने गुड सब एरेज हैं, और गुड सब एरेज का मतलब क्या है इसमें, वो सब एरे का और उस सब एरे के किसी एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं विच इज़ 4 2 3, ठीक है। अभी इसके सबसे पहले सवारी लिखते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहला सवारी होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 3। अब 4 का मैं और लूँगा तो 4 ही आएगा, ये है। इस सवारी का और 4 आएगा, और इस सवारी में जो सवारी है उसमें 4 है भी एज एलिमेंट, तो ये गुड है, ठीक है। इसका भी और 2 आएगा सिंगल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका और 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गुड है, ये सारे गुड है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये वाले सवारी में 4 और 2, जब मैं पहले 2 एलिमेंट लेता हूँ, इसका और लेते हैं। तो जब मैं 4 और 2 का और लूँगा तो ये आएगा 4 होता है, तो 4 इसका आएगा और 6, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे दिया, ठीक है। तो 6 इस सवारी में नहीं है, ठीक है। तो और इसने यही बोला है कि एक गुड सवारी क्या होता है कि उसका जो बिटवाइज और है ना उसके एलिमेंट्स का इज इक्वल टू एट लीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सवारी, बट यहाँ पे तो 6 प्रेजेंट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ये हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा 2 3 इनका और दिया हुआ है 3, ठीक है। नो 3 इस सवारी में है, ठीक है, ये गुड हो गया। आखिरी है 4 2 3, इनका और आ रहा है 7, ठीक है। 7 नहीं है इस सवारी में, तो ये नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आया हमारे पास 4, ठीक है। 4 सवारी हैं, 1 2 3 4, जो गुड है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन पहले तो अगर वो तभी मतलब बिट मैनिपुलेशन की चीज़ें, जो और होता है ना वो हमेशा ही बिट्स को इंक्रीज़ करता है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं करता। क्योंकि जैसे 0 और 0 0 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, और ये तो 1 हो गई। इसमें वो कभी भी जैसे 0 0 है तो वो 0 ही है, 1 0 तो वो 1 हो जाता है, 0 1 है तो 1 हो जाता है, 1 1 है तो 1 हो जाता है, वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता। एंड और हमेशा हर एलिमेंट से या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, जिन भी 2 एलिमेंट का मैं और ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे 4 2 का और 6 आया तो इनसे बड़ा है, 2 3 का और 3 आया, जो 2 3 का और है ना वो 2 3 से कभी छोटा नहीं आएगा, ये बात श्योर है। क्योंकि और कभी भी बिट्स को डिक्रीज़ नहीं करना ना, इसमें भी हम देखें तो कभी 4 2 3 है, इसका और कभी 1 नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि और कभी डिक्रीज़ नहीं करता, इसका और हमेशा बढ़ाएगा इन लोगों से, ठीक है। तो अगर और हम क्या चाहते हैं कि हमारे में जो और है वो किसी एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट है जो सबके बिट्स कवर कर रहा है ना। अगर वो और के इक्वल है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट है जो सारे बिट्स कवर कर रहा है। तो मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा हूँ कि सब एरे में, ये जो सब एरे ना, इसमें एक डोमिनेंट एलिमेंट टाइप सा होना चाहिए जो उस और के इक्वल है, वो डोमिनेंट है तभी उस और के इक्वल है, ठीक है। तो ना इसमें सबसे पहले जो मुझे रूट समझ में आया कि मैं सारे और लेके चेक कर लूँगा, सिंपल रूट तो ये होगा ना कि मैं सारे सवेरे में चेक करूँगा, सबका और निकालूंगा और मैं चेक करता रहूँगा कि प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। इससे दिक्कत ये आएगी कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा ना वो एन स्क्वायर की जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर, और यहाँ पे हमें दे रखा है 10 to the power 5 जो कंस्टेंट है, ठीक है। तो एन स्क्वायर चला जाएगा 10 to the power 10 तक कट एरिया है, ठीक है। इम्पॉसिबल कि ये लीड कोड में एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो रूट तो यहाँ पे नहीं चलेगा, तो इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन हमें सोचना पड़ेगा। तो इंस्टेड कि हम यहाँ पे हम सारे जैसे यहाँ पे सारे सवारे चेक करें, हम क्या करते हैं कि हम राइट एंड पॉइंट को फिक्स करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे 4 पे हमने राइट एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया, अभी हमसे 4 तक का देखेंगे। 2 पे हमने एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, फिर मैं 4 और 2 का देखूंगा, फिर 2 का देखूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जो लेंथ है ना वो घटा पाऊंगा, मतलब हर इंडेक्स पे देखते हैं कि कितने गुड सवेरेज एंड हो रहे हैं, ठीक है, ऑन ऑल सवेरे, ऑन ऑल इंडेक्स है, सॉरी। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो और समझ में डिटेल में देखेंगे वो चीज़ ना। यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो रही है कि हर इंडेक्स पे डिस्टिंक्ट और वैल्यूज मैक्सिमम 30 आएंगी। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये वाली कंस्ट्रेंट है, दिस वन, जो नम्स आई है ना लेस देन इक्वल टू 10 to the power 9 है। तो मतलब या तो ऐसे इसको याद ही रख लो कि जो 1E9 होते हैं ना, मतलब 10 to the power 9, उसमें जो बिट्स आती है ना मैक्स वो जाती हैं 30, और 1E18 में मैक्स बिट्स वो होती हैं 60 होती है शायद। हाँ, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना, ये सीपी में बहुत काम आएगा कि अगर मैक्स बिट्स 30 जाएंगे और इसमें मैक्स बिट्स 60 जाएंगी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एन स्क्वायर हम सिर्फ 30 वैल्यूज़ पर इंडेक्स ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करेंगे, एंड यही हमारा मेन ऑप्टिमाइजेशन है। तो हम स्टोर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं। हम एक प्रेफ वेरिएबल ले लेंगे प्रीवियस के लिए, ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा ऑल और वैल्यूज ऑफ सब एरेज स्टार्टिंग एट प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। मैं बता दो जैसे कैसे, इसका क्या फॉर्म होगा, जो ऑल वैल्यू है वहाँ तक की और स्टार्ट इंडेक्स उसका क्या है स्टार्ट। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो 3,1 है ना, 3, ये क्या हो गया इसमें, हाँ तो 3, हाँ ठीक है। तो हाँ 3,1 है, तो जिसमें सब एरो होगा ना 1 to r का जो और होगा वो 3 है। मैं यहाँ पे जो इसमें 3,1 ना, ये और वैल्यू है और ये इंडेक्स है जो 1 है। तो
तो हम क्या करेंगे, हम हर इंडेक्स पे 3 काम करेंगे, ठीक है। या तो हम वहाँ पे न्यू सब एरे स्टार्ट करेंगे, अभी मैं एग्जांपल लूँगा, मैं बस एक बार ऊपर बता रहा हूँ, अभी के लिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। तो या तो हम वहाँ पे न्यू सब एरे लेंगे, ठीक है। सेकंड, या तो जो हमारे पास ओल्ड सब एरे आया ना उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। थर्ड एक लास्ट काम है कि हम मर्ज कर देंगे जो डुप्लीकेट्स आए हैं, जैसे 3,1 भी आया, 3,2 भी आया, तो मैं इसको मर्ज करके 3,1 ले लूँगा इन टोटल में, ठीक है। सेम और आया है तो हम एक ही रखेंगे, ठीक है। नाउ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे सब क्लियर हो जाएगा अभी। 4 2 3 वाला ये है ना, फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, लेट मी सी, ठीक है। मैं हर स्टेप पे एक्जैक्टली बताऊंगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 कर लेते हैं, तो r इक्वल टू 0 है सबसे पहले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हम करंट इंडेक्स पे एक नया सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 4, ठीक है। हमने इसका और लेंगे, इसका और तो 4 ही आएगा। तो हमने एक करंट वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने इसको स्टोर करा, ये और वैल्यू है, ठीक है। ये इंडेक्स है जो कि 0 है और हमने इसको करंट में स्टोर करके रख लिया। तो 4,0 का मतलब क्या है कि और की वैल्यू 4 है और स्टार्ट इंडेक्स जो है वो हमारा अभी के लिए 0 है। यही मैंने ऊपर भी बताया कि स्टोर इसको करेंगे कैसे, इसलिए मैंने ऊपर बताया था ये वाली चीज़, ताकि क्लियर है। इसको मैं वो कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और वैल्यू स्टार्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स 0 है और वैल्यू अभी के लिए हमारे पास 4 है। अब चेक करते हैं क्या 4 इस सवाल में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, लास्ट सीन, जो कि जैसे लास्ट सीन हो गया, हम विजिटेड एरे रखते हैं ना उसमें डीबी में, तो यहाँ पे हमने लास्ट सीन रख लिया। तो लास्ट सीन हम चेक करेंगे 4 का कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, तभी तो वो गुड होगा 4 2 3 में। तो हम चेक करेंगे लास्ट सीन 4, तो ये 0 पे मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आंसर है ना, एक आंसर वेरिएबल लेंगे, हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा, ये वो काउंट होगा जो आखिरी में रिटर्न करने वाले हैं। तो इस 0 -0 +1 जो कि आ जाएगा 1। तो हमें एक गुड सवाल मिला जो कि है 4, बढ़िया। नाउ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू 1, वैल्यू है हमारे पास 2। अब इंडेक्स हम 1 पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नया सवाल स्टार्ट हो गया, विच इज 2, ओके। तो इसका जो और है वो तो 2 ही है, तो हम करंट में क्या स्टोर कर लेंगे, ये इंडेक्स हो गया 1 और इसका और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे प्रीवियस वाले को, क्योंकि हम सवाल तो ये भी बना सकते हैं ना 4 2। अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो प्रीवियस में था, जो हमारे पास अभी प्रीवियस है उसमें था 4,0, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसको हमने प्रीवियस में स्टोर करा था, मतलब इसका 4 था हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हमने एक्सटेंड करा तो 4 2 आया, जो उसमें क्या कहते हैं मेन सब एरे में, जो मेन एरे में। तो इसका और लेंगे, इसका और आता है, इसका 4 और 2, इसका और आएगा 6, इसका और 6 आया, तो हमने इसको भी करंट में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो करंट में क्या हो गया 2,1 ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। 2,1 और 6,0, बढ़िया। तो 6,0 का मतलब क्या है कि और 6 है हमारे पास, और सब एरे जो है ना वो हमने कौन सा लिया है 0 से लेकर 1 तक। ये बात सही है, यहाँ पे भी देखें तो 4 और 2 6 आना चाहिए, जो हमने अपने सोल्यूशन से हम लाए भी हैं, ठीक है। नाउ हम चेक करेंगे 2,1 पे, तो लास्ट सीन देखते हैं। लास्ट सीन 2 इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 1 है, विच इज करेक्ट, बढ़िया। तो आंसर में आंसर इक्वल टू +1, आंसर +1, तो सवाल हो गया हमारे पास, एक और गुड सवाल मिल गया 2। यही हमने चेक करा इसके लिए 2,1 वाले के लिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 6,0 के लिए कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब ये गुड है कि नहीं बेसिकली। अगर मैं क्वेश्चन के टर्म्स में देखूँ तो लास्ट सीन 6 पे जाते हैं, है कि नहीं है, नहीं मिला हमें, एग्जिस्ट ही नहीं है, मिलेगा कैसे, एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉट गुड। इसको हमें नहीं लेना, यहाँ पे आंसर प्लस नहीं करेंगे। तो आंसर अभी हमारे पास इन टोटल आया 2, विच इज करेक्ट ऑल्सो। 4 2 में 4 2 आया, मतलब इंडिविजुअल वाला, ठीक है। तो अब r इक्वल टू हो जाएगा 2, इसका मतलब वैल्यू 3, r इक्वल टू का वैल्यू 3 पे मतलब मेरा यहाँ पे, हम यहाँ पे ओके। हाँ, तो r इक्वल टू 2, वैल्यू इक्वल टू 3 से मेरा मतलब है हम आ गए हैं, हम आ गए यहाँ पे, ओके, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, मेरा हाथ से बैठ जाएगा। तो जो अब हमारा न्यू सवाल है वो 3 है, तो और की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो करंट में हम क्या स्टोर करेंगे, करंट में 3,2, ये इंडेक्स है 2 0 1 2 पे 2 पे आ रहा था 3। अब हम एक्सटेंड करेंगे प्रीवियस को, करते हैं एक्सटेंड। प्रीवियस में है क्या हमारे पास, प्रीवियस में, अरे यार ये पेन, 2,1 और 6,0 है प्रीवियस में अभी के लिए। तो एक्सटेंड करते हैं 2,1 को, तो हमने इसका एक्सटेंड करा तो ये हो जाएगा 2,3, ठीक है। इसका और लेंगे, कम ऑन, तो इसका और आएगा 2 और 3, इसका और आएगा 2 और 3 आएगा 3। तो हम करंट में स्टोर कर देंगे इसको, ठीक है। हमें बाद में भी चेक करना पड़ेगा कि ये गुड है कि नहीं है। और करंट में और क्या है 3,1 है। अब एक और है, अभी एक चीज़ है ना 6,0, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 6,0 को एक्सटेंड 6,0, तो सब एरे अभी हमारे पास आया है 4 2 3, ये इनका है ऑब्वियसली बात है। तो 6 और 3 ये आ जाएगा 7, तो ये जाके अब हम इसको भी करंट में स्टोर करेंगे। तो करंट में हो गया एक तो 3,2, एक हो गया 3,1, एक हो गया 7,0। अब दिक्कत है कि यहाँ पे सेम और है, सेम और तो मैं रखूँगा नहीं, इसको मुझे मर्ज करना ही है। तो दोनों में से कौन सा रखें, जो अर्लियर स्टार्ट है, ठीक है, जो हमने पहले स्टार्ट करा है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कवर कर ही लेगा ना। तो जो अर्लियर स्टार्ट है वो ये है 3,1, तो हम इसको रखेंगे। तो फाइनल कर हमारा बनेगा जो करंट वैल्यू रखे हमने 3,1 7,0, सही। अब हम इसमें हमें गुड भी चेक करना ही है, तो हम चेक करते हैं सबसे पहले, चलो 3,1 को चेक करते हैं कि ये गुड है कि नहीं। 3,1 का मतलब है जो सवारी की रेंज है वो 1 से 2 और ये आया है 2,3। तो चेक करते हैं लास्ट सीन 3 इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 है, सही है। मतलब 3 इस सवारी में प्रेजेंट है, जो कि हमें पता भी है ऑब्वियस प्रेजेंट है, सही आ रहा है। तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 2 -1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2, सही है। ये 2 आया कैसे, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 से 2 और 3 और 2 से ये वाला 3, तो दोनों ही गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच रहा है हमारे पास चेक करने को 7,0, उसको भी देख लेते हैं। 7,0 पे तो ये तो नॉट ही गुड है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉट गुड।
या मिलेगा नहीं हमें, मैं चेक भी करूँगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर 4 आएगा, यहाँ से 2 ऊपर से 2 तो 4 आएगा। तो हर स्टेप पे हमने क्या किया, हमने एक न्यू सवेरी स्टार्ट करा, ठीक है, उसके बाद पुराने को एक्सटेंड करा और वैल्यूज़ को कंप्रेस करते रहे और चेक करते कि और सवेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, वही हमेशा हमने चेक भी करा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है मैं आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, जो ये आंसर चीज़ है ना, अगर इसमें कन्फ्यूजन है ये वाली चीज़, ये मैंने डायरेक्टली कर दी, मैं बता ये मैं अपने दिमाग में सोच रहा था सिर्फ कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो जो लॉजिक है इसमें क्या है कि मैं लास्ट सीन लेता हूँ, लास्ट सीन मैंने देखा और वैल्यू का क्या है लास्ट सीन, ठीक है, उसको स्टार्ट इंडेक्स से माइनस करा मैंने और प्लस 1 करा है, यही होता है बेसिक लॉजिक। और वैल्यू मुझे लास्ट कहाँ पे दिखा ये वो चीज़ है और उस पॉइंट तक के सारे स्टार्ट वैलिड है, ठीक है, ये चेक करो, जैसे 3,1 है मान लो, ठीक है, तो लास्ट सीन 3,2 है, तो स्टार्ट क्या है मेरे पास, स्टार्ट एक तो 1 है एक 2 है, तो टोटल क्या है मेरे पास, टोटल 2 सब है और मतलब मेन कोड का फ्लो अब जब मैं कोड करूँगा तो वो सिंपल है, मैं लास्ट सीन मेंटेन करूँगा, प्रीवियस में और ग्रुप्स को रखूँगा, करंट को बिल्ड करूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि उसी करंट में और प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, ताकि वो गुड बने सबसे पहले, और फिर मैं काउंट को ऐड कर दूँगा और लास्ट में मैं प्रीवियस इक्वल टू करता ही रहूँगा ताकि वो इंटरचेंजेबली आगे भी मैं उसका यूज़ ले पाऊँ, ठीक है। तो अभी मैं इसका हम उसके कोड पार्ट पे चलते हैं, जब मैं इसका कोड आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन आती है तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, काउंट गुड सवेरीज। टैब पे हमने डिस्कस तो कर लिया इसका पूरा स्टोरी हम करेंगे कैसे, तो लेट्स सबसे पहले तो मैं इसका साइज तो स्टोर करना ही होता है हर क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो इसने बोला रिटर्न द नंबर ऑफ गुड सवेरी, तो ये मैं पहले ही रख लेता हूँ कि इसी यही रिटर्न करूँगा मैं आखिरी में, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ आर नाम, चलो रिजल्ट के नाम के वेरिएबल में, ठीक है, यही मैं आखिरी में रिटर्न भी करूँगा, ठीक है, यही फाइनल आंसर है। नाउ अब यहाँ पे मुझे एक जो मैंने प्रीवियस बोला था उसमें मैंने क्या बोला था कि मैं कैसे स्टोर करूँगा, एक तो मैं रखूँगा और वैल्यू और एक रखूँगा स्टार्ट इंडेक्स, तो इसके लिए मुझे INT चाहिए होगा पेयर में, सॉरी पेयर में INT चाहिए होगा, तो ये मैं ऐसे स्टोर कर लूँगा प्रेफ। तो ये क्या होगा, और ग्रुप्स फॉर सवेरीज एंडिंग एट प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, इसके पहले वाले पे। अब एक विजिटेड भी चाहिए होगा जैसा मैंने बताया था, जैसे हम DP में रखते थे, ठीक है, तो ये विजिटेड क्या होगा कि लास्ट इंडेक्स जहाँ पे ये वैल्यू आई थी, ठीक है ना, ऐसा समझ लिया, तो रख लेते हैं एक अनऑर्डर्ड मैप पे विजिटेड का बना के INT ये भी विजिटेड लास्ट सीन जो भी नाम रखना है, चलो विजिटेड ही रख लेते हैं यहाँ पे, तो लूप करते हैं पूरे उस पर, तो इस पहले तो एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं जो भी नाम आई है हमारा उसमें एक वेरिएबल में, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट अकरेंस है ना, हमें पहले तो वो अपडेट करनी पड़ेगी, मतलब विजिटेड में वैल को डाल के मैं उसको आई में स्टोर कर दूँगा, और ये सॉरी जो विजिटेड एरिया है ना उसमें आई स्टोर कर दूँगा, तो इससे क्या होगा जो लास्ट अकरेंस है ना इस करंट वैल्यू की वो अपडेट हो जाएगी ना। इसके बाद मैं जो मेरा करंट वेक्टर था मैं उसको डिक्लेयर करूँगा, जो कि मैं हर सब एरे के लिए रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी आएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहला स्टेप है अपना क्या था कि मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू सब एरे, बताया था ना 3 चीज़ें करेंगे हर चीज़ पे, तो पहले मैं स्टोर करता जाऊँगा जो जो भी वैल्यू है उसके साथ उसका इंडेक्स क्या आ रहा है उसको मैंने स्टोर कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा उसको मैं एक्सटेंड करूँगा सारे प्रीवियस एरे के साथ जो मैंने एग्जाम्पल में करके दिखाया था, ठीक है, एक्सटेंड विद ऑल प्रीवियस वाला देख लो। तो एक्सटेंड करने के लिए मुझे उसमें इटरेट करना पड़ेगा ऑटो एंड, अब इसमें 2 वैल्यू है और वैल्यू, ठीक है, और दूसरी रख लो स्टार्ट IDX जो कि उसके स्टार्ट के लिए है, एंड ये प्रीवियस वैल्यू से ही हम उसको एक्सटेंड करते हैं, तो जो मेरी न्यू और की वैल्यू एक टाइप से वो क्या आएगी, वो आएगी जो प्रीवियस और की वैल्यू होगी उसको मैं करंट और के साथ और करना चाहूँगा, तो करंट और मेरा वैल्यू में होगा ना, करंट नंबर के साथ और करना चाहूँगा ताकि मेरे पास अभी करंट और की वैल्यू आए, ठीक है, ये मैंने और निकाल लिया उसमें। लेकिन यहाँ पे मुझे वो मर्ज वाला चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर सेम एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको मर्ज भी कर पाऊँ, और मुझे उसमें भी लाइक उसमें मुझे स्मॉलर वाला रखना पड़ेगा, तो स्मॉलर रखने के लिए पहले तो मैं उसको चेक करता हूँ कि वो है भी कि नहीं, मतलब सेम है कि नहीं, तो कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं इसको, पर में डॉट बैक करूँगा डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है ना, 2,1 है तो 2 होता है ना, और तो इस वजह से मैंने फर्स्ट करा वहाँ पे, और मैं इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा अगर ये चीज़ सच है, तो थर्ड डॉट बैक पे इसकी जो सेकंड वैल्यू है ना उसको मैं स्टार्ट IDX के बराबर कर दूँगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आराम से मैं पुश बैक कर दूँगा उसके करके ही अंदर न्यू और जो आया है मेरा वैल्यू, इसका मतलब वो रिपीट नहीं करता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो हमने प्रेप बनाया ना, अब हमें काउंट भी तो करना है कि कितने सब एरे एंड हो रहे हैं। वी हैव टू काउंट सब एरे एंडिंग एट आई। वापस से हमें इटरेट तो करना ही पड़ेगा, ऑटो एंड और वैल स्टार्ट इंडेक्स होगा, इसको स्टार्ट आई डी एक्स होगा वरना वो वेरिएबल का। ठीक है, स्टार्ट आई डी एक्स करेंट से। अब हमें भाई पहले तो गुड चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं सब एरे में। ये जो और वैल्यू निकाली है हमने, तो उसको हम पहले तो स्टोर करना पड़ेगा हमें। ऑटो आई टी इक्वल टू विजिटेड डॉट फाइंड। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं जो और वैल्यू है। अब अगर आई टी नॉट इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड है, इसका मतलब वो है, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि जो आई टी की सेकेंड वैल्यू है, सॉरी आई टी डॉट जो सेकेंड पोजीशन पे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट आई डी एक्स से, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि सारे जो वैलिड स्टार्ट है ना, हम उनको काउंट कर लेंगे। काउंट ऑल वैलिड स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट आई डी एक्स टू लास्ट सीन। आई टी सेकेंड से लेके माइनस स्टार्ट इंडेक्स करूँगा और उसी में +1 कर दूँगा जो मैंने काउंटिंग लॉजिक बताया था। तो रेस्ट इक्वल टू रेस्ट प्लस, इसको मैं कर लेता हूँ लॉन्ग में क्योंकि मैंने उसमें देखा तो वो एंटी में होता नहीं है, उसमें टेल ही आएगा क्योंकि वो ओवरफ्लो करता है। सेकेंड माइनस स्टार्ट आई डी एक्स करूँगा और इसको मैं +1 कर दूँगा, ठीक है। ये उसकी जो सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है ना उसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस इक्वल टू कर तो मैं सॉरी कमेंट नहीं है, प्रीवियस इक्वल टू कर तो मैं ये करनी है ताकि हम जो करंट और ग्रुप है उसको हम टू प्रेव बढ़ा पाएँ नेक्स्ट इटरेशन के लिए। और आखिरी में हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे जो हमारा फाइनल आंसर था। लेट्स सी ऑन इनिशियल टेस्ट केसेस एरर है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे है, ओके हाँ वहीं पे मुझे भी दिख रहा था। यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, इसको हटा। अब ठीक लग रहा है। हाँ तो इनिशियल टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन एंड मैंने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ऑन डैट। एंड इसमें मेरी रैंकिंग कुछ लेट मी सी कुछ इंक्रीज हुई है क्या है, अभी कुछ 1K थी मेरी कुछ रैंक, उतनी होगी 1091 है मेरी रैंक इसमें। एंड इट वाज गुड, लाइक बढ़िया कॉन्टेस्ट था। सो yes, this ends our contest discussion. Video we have discussed and solved all 4 questions of LeetCode weekly contest 494. So I hope the explanations made sense and मैं एक बार अपने quickly socials के through go through करा देता हूँ. So this is my LinkedIn, this is my GitHub. You can check out my projects on GitHub like GoITC and other things. Go search. This is a full text search engine and other things. This is my Twitter and my LeetCode Code Forces कोड शेफ सब पे एक्टिव हूँ, तो यू कैन चेक माई प्रोफाइल आउट देयर ऑल्सो। मैं सब लिंक्स दे दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट्स जहाँ पे भी। तो जस्ट लेट मी नो कि ये वीडियो कैसा लगा। एंड ये वीडियोस बेसिकली मैं बस इसलिए बना रहा था कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैपेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो। आई नो आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस बट वही कि मैं समझा पाता हूँ कि नहीं फॉर द इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव। तो आई एम करेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट एट BBIT एंड मैं काफ़ी कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम करता हूँ। सो yes, you can check out my LinkedIn profile. So yeah, thanks for watching and I'll see you in the next one, basically next LeetCode contest or code chef or code forces जो साथ ही मैं दूंगा उस पर मैं बना दूंगा एक वीडियो। Yeah, okay, bye guys.